You know what? A lot of English learners know grammar, but they keep using the same basic phrases with their basic level pronunciation. And the problem is not that these phrases are wrong. I'm not saying they're wrong. The problem is that they often sound flat. They're almost predictable, weak. Every person is talking like that. You know, if you want to be a stronger speaker, you've got to choose words that are clearer, more precise. They show some kind of an intention, right? So I'm going to give you maybe 20, 25 simple upgrades for the same. Use these in everyday conversations, meetings, interviews, and discussions, and you'll see that the way people look at you, the way people treat you definitely changes. So the first one is, I think. Yeah, very common. Even a 2-year-old child, if he or she is surrounded by English speakers, she or he uses the phrase, I think. That's not what you have to do. You have to sound better, smarter than a 3-year-old. So what do you say? You say, from my perspective. From my perspective, we should start earlier. मेरे नज़रिए में, मेरी नज़र से, मेरे हिसाब से, from my perspective, right? Number 2, I want. I want to meet you. I want to have a meeting. I want this. Don't be so wanty. Don't be. Right, what could you say in place of this? You could say, I'd like to. I'd like to discuss one more point. I'd like to discuss one more point. Third is maybe. So instead of saying maybe, you can say it might be worth. हम maybe को कब यूज़ करते हैं? जब हमें एक शायद का भाव देना होता है, right? So अगर हमें ये कहना है कि शायद numbers को दोबारा देख लेना चाहिए, right? Maybe we should see the numbers again. Instead of saying that, you can say it might be worth reviewing the numbers again. It might be worth. यहाँ पर कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ काम का निकल जाए. It might be worth. Okay? Fourth is, you are right. Don't say you are right, because ek to, that's very strong. The moment you tell somebody else that you are right, they start feeling like the king of the world, and nobody needs to feel that way for now, at least in office spaces. So you can say, that's a fair point. ठीक कह रहे हो, हैं? तुम एकदम सही हो. नहीं, ठीक कह रहे हो. That's a fair point. That's a fair point, and I understand your concern. किसी ने आके ये बोला कि आप बहुत खराब हैं, हमें आपके साथ काम नहीं करना, तो हम ये थोड़ी कहेंगे you are right. हम कहेंगे that's a fair point. I understand your concern. तुम्हारी चिंताएं समझ में आ रही हैं मुझे. So तुम्हारी नज़र में खराब हो सकती हूँ, तो मेरे साथ काम नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो. Right? पर ये नहीं कहूँगी मैं कि तुम सही हो. पॉइंट तुम्हारा हो सकता है वैलिड. नाउ मूविंग ऑन, आई डोंट नो कितने लोग जिनको अंग्रेजी नहीं भी आती ना, वो भी कहते हैं आई डोंट नो. I'm not certain, but पूरा है ये phrase. So I'm not certain, but I can check that. For example, somebody said, कल छुट्टी है. I don't know. I'm not certain, but you can ask the colleague, or you can ask my colleague, or you can call your boss, whatever. You don't call your boss, but I'm not certain. हमें पक्का नहीं पता है, but चेक कर लो जाके खुद से, etc. Now, another word जिसका pronunciation लोग बहुत बार खराब करते हैं, जैसे agree होता है ये, agree. Don't say agree, right? अभी आज ही हमारे एक भाई साहब agree कर रहे थे, मैंने उनको बताया agree नहीं होता है, agree होता है. I agree है, ऊपर से बहुत common है, तो आप क्या बोल सकते हैं? I'm on the same page. Right? I'm on the same page मतलब जो तुम कह रहे हो वही हम भी समझ रहे हैं और हम भी वही कह रहे हैं. I'm on the same page with that approach. यानी इस मामले में, इस particular बात में हम तुम्हारे साथ हैं. Next is I don't agree. हमें नई सहमति दिखानी है तो हम एक ही चीज़ जानते हैं, I don't agree. What do you say? I see it a little differently. हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग सोचते हैं. I see it a little differently. Next is tell me. Now, if you want to ask somebody to explain something to you, to kind of give you some kind of clarification, etc., you generally say, tell me why did you do this, or tell me how did it happen. Instead of that, to make it more formal, you can say, walk me through it. Could you walk me through the process? Could you walk me through the entire scenario कि क्या हुआ था वहाँ पर? Could you walk me through it, through the process, etc. Next is explain. Could you clarify that? Could you clarify that part for me? Ma'am, can you explain this topic? Ma'am, could you clarify that topic for me? Look at the difference. The next one is good idea. So when we are very happy, we say, oh, that's a good idea. You can say, that's a thoughtful approach. Or you can say, sounds good to me. That's a thoughtful approach to the problem. यानी ये फलानी problem है, इसके लिए एक अच्छा approach है. Next is no problem. Happy to help. No problem, happy to help से replace कर दीजिए. आपने किसी का कोई काम किया, उन्होंने आपको बोला thank you, आप कहते हैं no problem. ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप कह सकते हैं happy to help. मुझे no problem तो अच्छा ही नहीं लगता as a phrase.
मैंने कब कहा कि प्रॉब्लम है? मैं तो तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? हैप्पी टू हेल्प बोल दो ना, दैट्स ओके बोल दो, बेटर है, नो प्रॉब्लम मत बोलो. नेक्स्ट इज आई एम बिजी. यू वांट टू गो ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, आई एम बिजी. नो, आई एम टाइड अप एट द मोमेंट. आई एम टाइड अप एट द मोमेंट यानी भी थोड़ा काम है भैया, ऐसा होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज आई एम लेट, आई एम रनिंग अ लिटिल बिहाइंड. थोड़ा सा डिले चल रहा है ना, आई एम लेट सब लोग बोलते हैं, आई एम रनिंग अ लिटिल बिहाइंड. नेक्स्ट इज वेट, गिव मी अ मोमेंट. अच्छा, मोमेंट और मूवमेंट. मूवमेंट इज हिलना डुलना चलना फिरना, मोमेंट इज एक क्षण, एक पल, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज दैट्स बैड, दैट्स नॉट आइडियल. दैट्स नॉट आइडियल बट वी कैन फिक्स इट. अब अगर कोई चीज़ हमें, जैसे किसी ने कहा कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लग रही है और मैं बोलूँ दैट्स बैड, ऐसा नहीं ठीक लगता ना, तो मैं बोल सकती हूँ दैट्स नॉट आइडियल, मतलब जैसा ये दिखना चाहिए था वैसा ये दिख नहीं रहा है, बट वी कैन फिक्स इट, ठीक कर लेते हैं इसको, है ना. नेक्स्ट इज दैट्स गुड, दैट वर्क्स वेल. दैट्स गुड की जगह दैट वर्क्स वेल लगा दीजिए कि बेहतर चल रहा है. हम क्यों सिखा रहे हैं आपको, इधर वाला गलत नहीं है. द होल पॉइंट इज ये बोरिंग है, रेपिटेटिव है, ओवर यूज्ड है, फ्लैट है, ठीक है. नेक्स्ट इज आई अंडरस्टैंड, आई सी वॉट यू मीन. समबडी सेज समथिंग और आपको बात समझ आ जाती है, आप कहते हैं आई अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट से आई सी वॉट यू मीन, राइट. नेक्स्ट इज कैन यू रिपीट दैट, कुड यू से दैट अगेन, कुड यू से दैट अगेन, क्या आप दोबारा वो कह सकते हैं. और खासकर जब कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो एक बार तो जरूर चेक कर लिया करो, कुड यू से दैट अगेन, दोबारा बोलो जरा, है ना, गंदी शक्ल बना लिया करो, बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के. एनीवे, द नेक्स्ट वन इज व्हाट यू मीन. अक्सर होता है लोग आपकी बात समझ नहीं पाते तो कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन. तो उसकी जगह आपके व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट. कम टू द पॉइंट, एकदम मुद्दे की बात पे आओ. व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट, अगर कुछ बुरा लगा है तो, या फिर व्हाट डू यू मीन ही बोल दो. एनीवे, द लास्ट वन वुड बी आई विल डू इट. आई विल डू इट आप अक्सर लोगों को कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कह रहे हैं, मत करिए. देखिए अपने लिए करिए जो भी करना है. जो आप सबके लिए सब कुछ करते जा रहे हैं ज़िंदगी में ना, कोई नहीं लौट के आने वाला है. जिस दिन उनकी ज़रूरत ख़त्म होगी आप निकाल दिए जाएंगे, ठीक है. तो फिर भी अगर आप करना ही चाहते हैं तो कह दीजिए आई विल टेक केयर ऑफ इट. क्या कहेंगे आप? आई विल टेक केयर ऑफ इट. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. विच एवर वन वॉज योर फेवरेट और quite a few if they were your favorite, do let me know in the comment section. लेकिन साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपको कहना है I am sure, ये बेसिक है I am sure, तो इसका एडवांस वर्जन क्या होगा? In the comment section. Don't forget to like, share, subscribe and hype the video. Thank you so much. See you later. क्या आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं लेकिन करियर शिफ्ट प्लान नहीं कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन गेम भी आपका ऑन पॉइंट है लेकिन करियर में वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं. Well, I have a brilliant opportunity for you जो आपको next 5 months में solid job, salary, position सब कुछ दिला सकती है. पूरी जानकारी के लिए watch this video. This is your opportunity presenting the Sky Premium Bankers program in collaboration with Kotak Mahindra Bank. ये एक structured career launchpad है जो आपको direct banking role तक ले जाता है. Number 1, direct entry into banking career. Number 2, no prior experience required. Number 3, structured training plus guaranteed placement pathway. Number 4, high growth role as NRI VRM. VRM stands for Virtual Relationship Manager. Eligibility क्या रहेगी? Make sure कि आप eligibility सारी follow करिए. 10+2+3 in regular mode required है. आपका graduation किसी भी stream में हो लेकिन minimum 60% होना चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. कोई भी स्ट्रीम, कोई भी परसेंटेज पास होने चाहिए. लोकेशंस 2 हैं, थाने एंड हैदराबाद. थाने लोकेशन के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको जॉब थाने में मिलेगी. हैदराबाद लोकेशन के लिए ओनली तेलंगाना कैंडिडेट्स आर एलिजिबल. इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है. फेज 1 है 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो आपको हमारे कैंपस पे दी जाएगी. इसके दौरान आपको 7500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. फेज 2 इज 15 डेज इंटर्नशिप एट थाने और हैदराबाद ऑफिस. फेज 3 इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग योर फुल सैलरी फ्रॉम इंटर्नशिप फेज. फ्रॉम द 5th month फुल टाइम रोल विद कोटक महिंद्रा बैंक एज NRI VRM. इस प्रोग्राम की एक पर्टिकुलर फीस है. Program fees is 1.5 lakhs plus GST. लेकिन if you compare it with the starting salary of 4.5 lakhs per annum, I think this is almost nothing. आप जैसे ही इस जॉब में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं आपको 50,000 रुपीज का बोनस मिलेगा. सेकेंड ईयर कंप्लीट करते ही अनदर 50,000. तो आई थिंक आप अपनी फीस ऑल एंड ऑल वापस ले लेते हैं. सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी. अप्लाई नाउ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए.